So I hope everyone ready for today's session. You can sit comfortably on your mat, Vajrasan or Sukhasan. Hands in, join your palms in front of your chest and gently close your eyes. आँखों को बंद करते हुए अपने शरीर को व्यवस्थित कर ले। देखिए कि आपकी कंधे पीछे की ओर है, सीना सामने है, पीठ सीधी है और श्वास प्रश्वास धीरे धीरे सामान्य। Enjoy the ingoing breath and the outgoing breath. Feel the energy as you breathe in. Feel the deeper relaxation as you breathe out. सांसों पर ध्यान और शरीर में कहीं पर कड़ापन या टाइटनेस नहीं है। आज की सत्र की शुरुआत करते हैं 3 ओमकार और प्रार्थना से। लंबी गहरी सांस ले, गहरी सांस भरे। Enjoy the vibrations of the prayer. Feel the oneness. Now slowly, gently, deep breathe in and open your eyes. Okay friends, so let's begin our loosening practices. धीरे से आप पैरों को stretch करके बैठ जाइए and keeping the hands behind so that you're not slouching. Keep the back straight and toes contract, relax. 5 to 6 times or more. Now when you're doing the contraction, see that you're not lazy, you're tightly contracting and opening up. रोज की प्रैक्टिस है तो आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, प्रैक्टिस में पूरा इन्वॉल्व करके करें. सी दैट योर एंटायर अटेंशन इज ऑन द टोज. पैरों के पंजों पर पूरा ध्यान है, अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छी तरह से पैरों के पंजों को खोल रहे हो. आफ्टर दैट लेट्स डू द एंकल स्ट्रेच. स्लो एंकल स्ट्रेचिंग, जितना एंकल्स को तान सकते हैं ताने और अंदर की ओर भी खींचे. Again that also 8 to 10 times and complete awareness of the joint movement, of the ankle joint movement, forward and backward stretching. अच्छी तरह से खींचे ताकि हमारे पैरों में कोई भी तकलीफ है या कड़ापन है वो दूर हो जाएगा. It also helps to strengthen your ankle joint. अब पैरों में अंतर रखें and viper movement in and out. इसमें देखो पैरों की सिर्फ पूरे थाई मसल्स से लेके आप पैरों को इन आउट मूव कर रही है. Nicely practice that way and feel the nice twisting of your leg muscles. 8 से 10 बार. Enjoy the movement. And relax. Okay. Now fold the right leg, hold below the knee and just keep the spine straight. Just open the leg up and slowly back. 1,
2 back straight, 3 bend forward, 4, 5 and slowly relax. Same way, repeat with the other side. Left leg below the knee, interlock fingers. Just open the leg and close. 1, straighten down. 2, 3, 4, 5. Okay. Now hold the toes. Yes. 1, 2, 3, 4, 5 and gently relax. Now tap your knees to relax your leg muscles. Back straight again. Okay. अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, पैरों को मोड़िए. Let us do नौका क्रिया. Forward backward bending for the spine. Forward and back. 1, 2, 3, 4 and 5. And try to do reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Relax yourself. Let us do चक्की क्रिया also. पैरों में अंतर रखें. मैट के बराबर पैरों को फैला दें. Hands interlock. If you have severe back pain, slow करो या तो आपने skip किया तो भी चलेगा. Forward, go beyond your toes. Lie down completely back and again get up. 1. धीरे धीरे करें. 2, 3, 4, 5. ओके. अब उल्टा करते हैं. 5. पूरा पीछे लेट जाओ, फिर आगे जाओ पूरा. 4. टेक योर टाइम. 3, 2, 1. Very good. Okay. And come back. Relax. Okay. Now fold the legs. Right leg fold. Left leg to the side. Just we will do the lateral bending. Back is straight. Okay. Slowly lateral bending. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And change other side. You can shift. Lateral bending. Feel the nice compression on the right side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now both the legs spread apart. How much ever you can spread. Okay. Now just hold over here. ऐसे. See वैसे fingers को touch करो. Lateral bending again. 1. Then slowly center. And again right elbow, right knee. That's 1. Okay. Left elbow to the left knee. Bend to the left side. Forehead to the knee. And again left elbow to the left knee or below. Okay. ये एक हो जाए. Again. Right. Center. Again bend down to the right side. Left elbow down. Center bend. And again left elbow down. Okay. करते हैं वैसे तीसरी बार. 1. Go down more. And same. तो एक तरफ आपका राइट एल्बो टच हुआ, फिर सेंटर फोरहेड टच किया, फिर वापस एल्बो टच किया, वो कंप्लीट हो गया. Again. Go down. And down. Okay. Well, last round we'll do, friends. नीचे जाइए, राइट साइड, फिर फोरहेड नीचे ले जाइए, फिर राइट एल्बो को राइट नी के पास ले जाइए. लेफ्ट एल्बो डाउन, forehead to the left knee, and left elbow down. So nice it is. Okay. And now just do the slight twisting. इस तरह से मुंह नमन आसन 5 times. Three, 4, last 5. जितना हो सके माथा नीचे ले जाने की कोशिश करें. ओके. नाउ डू द तितली क्रिया. वेरी एसेंशियल क्रिया. रेगुलरली करना है तितली क्रिया को. तो पैरों को जोड़ेंगे. फोल्ड द
soles of the feet, back is straight and do the flapping, look up, 25 times. Bring the legs closer, twist down, press down, look up. अब धीरे से पैर को जरा आगे लेके फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करें. स्लोली गो डाउन, जितना जा सकते हैं, एंड अगेन डाउन, कम बैक. ओके, ऐसे ही बैठे रहे. नाउ प्लेसिंग योर लेफ्ट palm on the right knee, take the right hand back and twist your torso complete to the right side back. 1, 2, 3, 4, 5. Repeat the other side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Join the wrists together. Press your thighs on your abdomen. Look up. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now gently try to get up. धीरे से आपको उठना है. इस तरह से उठेंगे without taking any support. Yes. So now you are in the standing position. थोड़ा सा हम neck movements पहले कर लेंगे. So just stand on your mat. Palm, just on the waist, hands on the waist. Move the neck, head right and left. 1, 2, and 3. Okay, yes. Back and forward bend. 1, 2, 3. अब राइट हैंड से ऐसे लेफ्ट साइड के हेड को पकड़ के राइट साइड प्रेस करें. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज. 1, 2, 3, 4, 5. Change. Now hands again on the waist and go for the rotation. Not compulsory. जिनको भी वर्टिगो है या स्पॉन्डिलोसिस है वो नहीं करेंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एक बार क्लॉकवाइज करके एक बार एंटी क्लॉकवाइज करें. 2 and reverse. Lastly 3 and reverse. Got it? Let's go for a nice neck stretching. तो ऐसे करो, stretch करो, आगे पीछे and back. Again forward stretch, back. Again forward stretch, back. It's a nice stretch. Okay, relax. Okay, so now let us do some lunges. तो पैरों को आगे लेके इस तरह से राइट लेग को आगे लेके खड़े रहे. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4 and 5. Change other side. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So now we will take one hand ऐसे, सिर्फ हाथ को नहीं पीछे, एक हाथ कमर पे रखिए, राइट एल्बो is down. Okay. Now observe. Elbow knee touch and take the leg back. Sideway lunge again. Touch, back. Elbow knee touch, back. Last time and back. Okay. Repeat with the other side. Left leg. Elbow knee touch and take the leg back. Again touch, back. तीसरी बार back. Last elbow knee touch and back. Okay. Simple practice crossover वाला ये. 1. This is easy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Yes. Now palms at the chest level and touching the knees. Okay. With the palm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. अब सेम सिटअप्स करेंगे, पर जिनको भी नी पेन है वो नहीं करेंगे. हैंड्स फॉरवर्ड, सिट डाउन एंड अप.
faster. Let's go for the breathing practice. Hands forward. Breathe in deep. Breathe out. Breathe in deep. Breathe out longer. Breathe in deep and breathe out. Okay, ankle stretch breathing करेंगे. Ankles को उठाना है, हाथों को भी उठाना है. Breathe in. Breathe out. सांस भरे, एड़ियों को उठाए, हाथों को उठाए, सांस छोड़े नीचे. और एक बार. And breathe out. That was a nice practice. And the last one, your up. अंगूठों को बाहर रखो, thumbs up position. साइड में हाथों के अंगूठों को सिर के ऊपर जोड़ना है, सांसों को भरते हुए. हाथों को नीचे लेना है, सांस को निकालते हुए. 5 बार करेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. स्लोली ब्रिंग द हैंड्स डाउन. सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, सांस बाहर, सांस ले और सांस बाहर. ओके, एंड नाउ वी रेडी फॉर जॉगिंग. स्लो स्लो मार्चिंग करो पहले. स्लो स्लो मार्चिंग. Feel the loosening effect in your entire body. Feel the perspiration. बट तो भी अच्छा लग रहा है. Those who want to do marching, continue with marching. Those who want to do jogging, will start with jogging. Slow slow jogging करेंगे. Move your hands. Continue with your jogging. You can increase the speed if you want to. हाथों को कंप्लीट ऊपर. Yes, enjoy. अच्छे से जॉगिंग करें. हाथों को पीछे से आगे ले. 5 rounds from back to forward. Okay, forward to back. हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें. पुश पुश साइडवेज. palms up and down movement. Okay, handshake. We'll do sideways jumping jack, hands to the side and jumping jacks करते हैं. Okay, हाथ ऊपर लेते हैं तो आज हम हाथों को साइड में लेंगे. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Continue jogging. Relax your hands. Okay, you can stop. Palms को घुटनों पर रखें. नाक से सांस ले, मुंह से बाहर. Breathe in deep. Breathe out from the mouth. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Stretch down. Stretch down. Relax your hands and head. Come up, backward arch. अब ट्विस्टिंग करेंगे. ट्विस्ट राइट एंड ट्विस्ट लेफ्ट. ओके, अब थोड़ा विश्राम कीजिए. Those who want to sit can sit. ओके, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होना है, इसीलिए जगह पर रिलैक्स करें. Breathe in, breathe out. Breathe in deep. Breathe out longer. नाक से सांस लेंगे, मुंह से बाहर. So let's go for the सूर्य नमस्कार practice. पहले वाले 6 सूर्य नमस्कार 10 स्टेप वाले करेंगे एज यूजुअल. सो पैरों को जोड़े, हाथ नमस्कार मुद्रा में. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करेंगे. अदर्स जो आर यूज्ड टू, प्लीज गो विथ माय स्पीड. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. रिलैक्स, थोड़ा विश्राम करें. 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं. फील द रिलैक्सेशन as you breathe in deep, breathe out from the mouth. Breathe in deep, breathe out from the mouth. Again, breathe in deep, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax. Next half is not compulsory. अभी हमें रेगुलर पारा की आदत हो चुकी है, इसलिए हम सब पारा करते हैं. जो बिगिनर्स हैं, जिनकी कोई तकलीफें हैं, आपने नहीं किया तो भी चलेगा. अगर सेकेंड राउंड करना भी है, सेकेंड हाफ करना भी है, आप ऑल्टरनेट करो. अगर आपकी एनर्जी नहीं है, कुछ पेन है, डिस्कम्फर्ट है, और इफ यू आर अ बिगिनर. सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड हाफ. अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम 10 स्टेप. थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अभी. रेडी? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So that completes 12, and now you can sit down. Sit down, lie on your back. थोड़ा विश्राम करें. एक करवट पे आके फिर पीठ के बल लेट जाए and relax for a while, so that your breathing, which is fast, your heartbeat is fast, it settles down. Breathe out longer from the mouth. Feel the breathing settling down. Try to breathe out longer. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो चुकी है, तो आप गहरी सांस ले और लंबी सांस मुंह से छोड़े. थकान जल्दी दूर हो जाएगी, आपको आराम महसूस होगा. फील द रिलैक्सेशन.
क्रंच, एब्डोमेन क्रंच हम करेंगे. ओके, सो लेट्स बी रेडी. एब्डोमेन क्रंच के लिए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाए, पैरों को 90 डिग्री सिर को उठाए. 1 2 3 4 5 6 7 8 and relax. You have to raise your legs up, head up and hands by the side. Again you go back. Relax. पैरों को इस तरह से मोड़े. Fold the legs, hands नमस्कार मुद्रा में. उठ के बैठना है, पहले राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर सेंटर. 1 लेफ्ट, 1 सेंटर, 1. ओके, चॉपिंग, वुड चॉपिंग का टेक्निक है ये. सेकेंड, 2 राइट, 2 लेफ्ट, 2 सेंटर, 3 right, 3 left, 3 center. 2 more rounds. 4 right, 4 left, 4 center. Okay, last. 5 right, 5 left, 5 center. Nice abdomen crunch that was. Now relax completely. Breathe in, breathe out, deep and long. Feeling that nice abdomen crunch. अब शवासन के लिए लेट जाए, पैरों में अंतर रखें, दोनों हाथ शरीर के दूर है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर और हाथों की लूज फिस्ट बनाएं और सिर पर सेंटर पे रखें. बालों को लूज करें. सिर का पिछला हिस्सा मैट पे होना जरूरी है. रबर बैंड स्लिप्स बालों में है तो उन्हें लूजन अप करो ताकि आपका सिर का पिछला हिस्सा मैट पे होगा. अब इस तरह से लेटे रहे शवासन में और मेरी सूचनाओं को सुनते जाए. एंजॉय दिस शॉर्ट रिलैक्सेशन. सो लाई डाउन एंड जस्ट विजुअलाइज एंड रिलैक्स. आई एम गोइंग टू गाइड यू फॉर रिलैक्सेशन. ध्यान दोनों पैरों पर ले आए. मन ही मन अपने दाहिने पैर को देखे, बाएं पैर को देखे और दोनों पैरों को गाइड करें. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. So feeling the relaxation in both the legs, they are becoming so light. दोनों पैर हल्के हो रहे हैं. फिर ध्यान हाथों पर ले आना और दाहिने हाथ को मन की आंखों से देखे, बाएं हाथ को मन की आंखों से देखे. दोनों हाथों को फिर से गाइड करें. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. फील द रिलैक्सेशन इन बोथ द हैंड्स, दे आर बिकमिंग लाइटर. दोनों हाथ भी अभी आपके ढीले हो गए हैं, हल्के हो गए हैं. ध्यान पीठ पर ले आना. बैकबोन, बैक मसल्स को देखिए. रिलैक्स देम. फील द रिलैक्सेशन इन योर लोअर बैक, मिडिल बैक एंड अपर बैक. रिलैक्स. Then gently relax your front, abdomen and chest. रिलैक्स करें. Now relax your neck region. Relax all your facial tissues and facial parts. Relax your head. पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर में आप देख रहे हो आराम ही आराम है. कहीं पर भी कोई टाइटनेस, तनाव बिल्कुल नहीं है. Scan your body and entire body is completely relaxed. Feel the relaxation. As you
Observe yourself. You are feeling your breath also settling down. तो अब इस छोटे से विश्राम के बाद हम आसनों के लिए तैयार है। तो अभी आपको चैतन्य आसन से बाहर आना होगा। सजग हो जाए और ध्यान पैरों पर ले आए। पैरों के पंजों को जरा जरा हिलाइए, फिर हाथों की उंगलियों को हिलाए, सिर को घुमाए राइट लेफ्ट, दोनों पैरों को जोड़ो, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए, पूरे शरीर को तानिए, स्ट्रेच को रिलीज करें। अपने दोनों पैरों को मोड़े, आंखों को बंद ही रहने दीजिए। एक करवट पे आ जाइए, धीरे से थोड़ी देर के लिए उस करवट पे रहिए और अब आंखों को बंद रखते हुए हाथों का सपोर्ट लेके आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। इस तरह से विश्राम स्थिति में बैठेंगे क्योंकि अभी हमें आसनों के लिए तैयार होना है। सो जस्ट सिट इन द रिलैक्स कंफर्टेबल पोजिशन इन सिटिंग, रिलैक्स इन द सिटिंग पोस्चर और धीरे धीरे आंखों को खोलें। ओपन योर आईज जेंटली। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर रेडी फॉर द आसनास, द सेकेंड हाफ सेशन। अभी हमने विश्राम भी कर लिया है, तो आसनों के लिए हम अब तैयार हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट आसन इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, ट्विस्टिंग आसन। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। सिटिंग में करेंगे वक्रासन। वक्र यानी ट्विस्ट और आसन यानी पोस्चर। सो this twisting asan, once you do it, afterwards I will tell you what are the benefits of that. So vakrasan is a sitting twisting asan. अब एक खासियत इस आसन की है कि इस आसन को हम सभी पोस्चर्स में कर सकते हैं। मतलब सिटिंग में भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, पेट के बल लेट के भी कर सकते हैं और पीठ के बल लेट के भी। तो आज हम वक्रासन के सभी प्रैक्टिसेस सीखेंगे। ओके, so that you know that this आसन can be done in all postures. So it's such a wonderful practice और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है। You can listen or see variations and adapt to any one which you like. जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अडॉप्ट करो और वो कर सकते हैं क्योंकि इसके आसन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सो नाउ द सिटिंग वक्रासन इज कॉल्ड एज वक्रासन। इसके लिए ऐसे पैरों को रखिए। अब राइट लेग को फोल्ड करो, मेरे साथ साथ करेंगे। राइट लेग को फोल्ड किया। अब राइट फुट जो है नजदीक नहीं लाना है, बिल्कुल आपके बाएं घुटने के बगल में रखें। सो राइट फुट बाय द साइड ऑफ द लेफ्ट नी। नाउ देयर इज अ टेंडेंसी दैट वी विल स्लाउच, तो आपको राइट नी के नीचे ऐसे हाथ को लेके पकड़ना है। सो यू जस्ट होल्डिंग द नी फ्रॉम डाउन सो दैट यू आर सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठे। ओके, नाउ स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड अप, ऑपोजिट हाथ को खींचना है ऊपर और राइट नी के बाहर से ले जाके आपके एंकल को पकड़ना है। इस तरह से एंकल को नहीं पकड़ सकते हैं तो फिर आप इस तरह से एल्बो से पुश करो। ये भी नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पकड़ के पुश करना। तो कोई भी एक प्रैक्टिस ऐसे करो, नहीं होता है तो ऐसे एल्बो से पुश करो नी को, ये भी नहीं होता है तो बस ऐसे, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। वंस यू हैव होल्ड दिस, अब ये राइट हैंड को नीचे से छोड़ो और अपने स्पाइन के नज़दीक रखो, बहुत दूर नहीं रखना, नज़दीक रखेंगे और धीरे धीरे आप पीछे देखेंगे। सो योर शोल्डर्स आर इन वन लाइन, क्लोज योर आइज और ये फाइनल स्टेप है वक्रासन का। मेंटेन करें 1 2 3 4 5। धीरे धीरे गर्दन को सीधी कर ले, पीछे वाले हाथ को रिलीज करके घुटने के नीचे और फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करके इस पैर को सीधा कर लीजिए। सो यू आर रिलैक्स्ड ओवर हियर एंड नाउ वी रिपीट विद द अदर साइड आल्सो। तो दूसरी तरफ से भी करेंगे इस तरह से, द सेकेंड साइड। सो नाउ आई एम शोइंग यू बिकॉज आई हैव टू फेस यू। सो लेफ्ट साइड, अभी आप सीधे हैं, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए इस तरह से, होल्ड बिलो द नी, सेम प्रैक्टिस। राइट हैंड इज स्ट्रेच्ड अप, नाउ आउटर साइड, ये नहीं होता है, ऐसे करो, ये भी नहीं होता है, पाम से पुश करो, होल्ड एंड नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड क्लोज टू द स्पाइन, नॉट फार ऑफ, क्लोज टू द स्पाइन एंड लुक बैक टू द लेफ्ट साइड। और ये पैर को ढीला रखो, जो पैर सीधा है उस पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। क्लोज योर आइज, ब्रीदिंग नॉर्मल, 1 2 3 4 5। गर्दन को सीधी करें, रिलीज योर लेफ्ट हैंड फ्रॉम बिहाइंड, होल्ड द नी, रिलैक्स द राइट हैंड। सो इसमें आपने जो पैर को मोड़ा है उसके ऑपोजिट लेग को, उसके ऑपोजिट हाथ को घुमाना है, रिमेंबर दैट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। इसका सेकेंड राउंड हम करेंगे, पर इसके पहले इसके बेनिफिट्स को समझ लो। इसका तरीका है सिंपल, मैंने इसके स्टेप्स में बताया है, सो प्लीज फॉलो द स्टेप्स, डोंट डू ऑन योर ओन।
जैसे मैंने बताया है वैसे ही करो, समझने में आसान है इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो वक्रासन जैसे आपने समझ लिया कि वक्र, तो यहाँ पे क्या वक्र हो रहा है, वक्र क्या हो रहा है, हमारा स्पाइन। तो द स्पाइन इज गेटिंग ट्विस्टेड और यू नो, ऑल ऑफ यू नो द स्पाइन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बीइंग। अगर हमारा रीढ़ की हड्डी नहीं है तो हमारा बॉडी को कोई शेप नहीं है ना। सो द backbone, the structure which supports our entire body is the backbone. And if the backbone is very stiff, then all the problems start cropping up. If the backbone is very flexible, then you are healthy, fit and fine, and you are young also. तो इसीलिए हमारे स्पाइन को लचीला बनाने के लिए वक्रासन इज द बेस्ट प्रैक्टिस. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एंटायर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर स्पाइन. ठीक है, ये एक है. फिर स्पाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर नर्वस सिस्टम बिकॉज ब्रेन के साथ साथ उतना ही महत्व हमारे रीढ़ की हड्डी को है. क्यों? क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी नसें निकलती है. All the nerve sensations which we get on hands and legs are coming up and going from the spine. So it's like a transit way. वहाँ से impulses हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं. तो ये एक रास्ता है जो impulses है, stimulation है, हमारे ब्रेन की तरफ ले जाते हैं. So if you are keeping the spine flexible, there will be not any congestion and the nerve impulses will be, मतलब आपका nervous system strong होगा. योग अभ्यास में हम कहते हैं कि मन को शांत रखना है. तो when you are keeping the mind calm means what your nerves are functioning properly. मन बहुत अस्थिर है, मतलब आपका सिस्टमिक प्रॉब्लम भी है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी. सिस्टमिक प्रॉब्लम इज व्हाट, आसन करके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा के या बीमारियों को दूर रख के. तो यू आर मेकिंग द स्पाइन फ्लेक्सिबल, सो यू आर इम्प्रूविंग द flexibility and the nerve sensation from the brain to the parts of the body, from the body parts to the brain, vice versa, वो आप हेल्प कर रहे हैं. Now another benefits of that is what, आपका स्पाइन तो फ्लेक्सिबल बनता है, यहाँ के सभी मांसपेशियाँ अच्छी तरह से टोन्ड अप हो जाती है. डायबिटीज वन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपका ट्विस्टिंग हो रहा है, तो मसाजिंग इफेक्ट ऑन योर पैनक्रियाज. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बेली फैट ऑल्सो. इट हेल्प्स टू टोन अप द मसल्स नाइसली. इंटेस्टाइन्स का भी अच्छे से ट्विस्टिंग हो रहा है, तो इंटेस्टाइन्स में जो भी क्लॉग्स है वो निकलने में मदद होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी दूर होती है. सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ वक्रासन एंड दैट्स व्हाई डेली प्रैक्टिस में इसको लाना है. जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिनको लगता है हमारा शरीर बहुत कड़ा है, स्टिफ है, रेगुलरली कोई भी प्रकार का वक्रासन करो. ये वाला वक्रासन सिटिंग वाला ज़रा मुश्किल है, बाकी के वक्रासन जो आगे वाले पोस्चर्स में हम करेंगे वो आसान है. ओके, तो हमने समझ लिया है. एक और राउंड के लिए हम तैयार हैं. सो नाउ वी गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ वक्रासन. राइट लेग फोल्ड, राइट नी के नीचे से पकड़ेंगे, पीठ को सीधा रखें, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच आउटर साइड होल्ड and right hand back. Turn completely to the right side back. See the left leg is straight and relaxed. Try to draw your shoulder back. Close your eyes. Enjoy the nice compression on the right side. Maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6. धीरे से गर्दन को सीधी करें, पीछे वाले हाथ को रिलीज करके घुटने के नीचे पकड़ें, फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करके रिलैक्स कीजिए. ओके, and we repeat it with the other side. Left leg fold, left foot by the side of the right knee. लेफ्ट हाथ से लेफ्ट नी के नीचे से पकड़ेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाया, आउटर साइड ऑफ द नी होल्ड and let the left hand go back towards the spine. See the right leg is completely relaxed. Draw the shoulder back, turn the head back, maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly step the head forward. Release the back hand, relax the hand, relax the legs. Close your eyes, we should relax for a while and try to just recap all the benefits which I just now enumerated to you. कितने सारे benefits हुए हैं मैंने बताए हैं और आपने महसूस भी किए. Now we are ready for the next practice and other standing. तो जैसे हमने सिटिंग में वक्रासन किया वैसे ही अब हम खड़े होके वक्रासन करेंगे. तो जब खड़े होके वक्रासन करेंगे तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसका नाम हो जाता है दंडस्थ वक्रासन, क्योंकि हम दंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यू गोइंग टू टर्न विद द हैंड्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दंडस्थ वक्रासन. लेट्स स्टैंड इन अ प्लेस एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड सिंपल प्रैक्टिस, बट पूरा सजग रहना है, सजगता पूर्वक इस आसन को करना है. तो स्टैंड इन योर प्लेस, यू आर स्टैंडिंग. नाउ राइट लेग को ऐसे लेफ्ट के बाजू में ले जाना. ओके, ये राइट लेग है, इसको आपने लेफ्ट के बगल में, इसकी एड़ी को उठाना नहीं है, पूरा दोनों पैरों के पंजे मैट पे है. अब दोनों हाथों को भी शोल्डर लेवल में स्ट्रेच करें. आई विल स्टैंड फॉरवर्ड,
Yeah. Okay. Now hands are stretched at shoulder level. Now what is the leg? Right taken to the left. So my right leg I have moved. Means I have to turn my torso to the right side. आपको ऐसे नहीं जाना है. आपको अगर राइट लेग को उठा के लेफ्ट की तरफ ले गए हैं तो आपका टॉर्सो जो है वो राइट की तरफ घुमाना है. सो हैंड्स आर स्ट्रेच्ड. टर्न द टॉर्सो टू द राइट साइड एंड फील द नाइस ट्विस्ट. मेंटेन करें. घुटनों को सीधा रखिए. 1 2 3 4 5. सेंटर. ओके. यू फीलिंग सो मच ऑफ ट्विस्ट ओवर हियर. है ना. फिर रिलीज करो एंड रिपीट. नाउ लेफ्ट लेग टू द साइड ऑफ द राइट. ओके. लेफ्ट को लिया है तो हमें टॉर्सो को लेफ्ट की तरफ घुमाना है. Whatever leg you have moved, you have to turn to that side. उतना सिंपल प्रिंसिपल को ध्यान रखें. Turn left side. 1 2 3 4 5. Center and gently hands down, leg down, relax. Got it? So if you are doing the wrong way कि right को लिया है और आपने left की तरफ घूम लिया तो आपको कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला है. कितना भी करो आप, कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला है. वो आसान रहेगा. So you have to understand कि कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आ रहा है. It's the same side. राइट लेग को घुमाया है तो राइट की तरफ टॉर्सो को घुमाएं. Then you feel the nice resistance and a twisting effect. Okay. So दंडस्थ वक्रासन, all the वक्रासन का बेनिफिट मैंने बता दिया है बैठ के. Same benefits will be for all the posture वक्रासन. Okay. तो दंडस्थ वक्रासन अगेन इसका उन बेनिफिट्स के साथ एडेड बेनिफिट ये है कि आपका चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है. टोन्स ऑफ द चेस्ट रीजन improves your lung capacity. So आपकी ब्रीदिंग समस्या दूर हो जाएगी. आजकल के दौर में सांसों की जितनी भी अपनी फेफड़ों की क्षमता को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना अच्छा है. So this is a very nice practice to increase the lung volume and improve the strength and health of your respiratory organs and muscles. Okay, so we do it one more time. फिर से आप खड़े रहिए. Be alert, be conscious and follow the instructions and do. गलत नहीं करना है. सही तरीके से जैसे बताया है वैसे ही करो. Right by the side of the left. Hands are stretched at shoulder level. Balance yourself. Your feet are on the mat. एड़ियों को उठाना नहीं है. हाथों को shoulder level में लिया. धीरे 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 राइट साइड टर्न करो और मेंटेन करो. वहीं पे एक साइड में देखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly turn center. Hands down and relax the leg. Okay? Yes. Now repeat left leg. Generally all the vakrasana are self complementary. एक तरफ से किया तो दूसरी तरफ से करना है. So these are आसन. This आसन हम कितनी समय कर रहे हैं. देखो बेनिफिट कितना मिल रहा है. And turn now to the left side. 1 knee straight. 2 3 4 5 6 7 8. Gently center. Relax the hands. Relax them. So wonderful asan in standing. But you feel this nice pull on your pectoral muscles and even it stretches your arms, so tones up your arms also. So ये था खड़े होके किया हमने दंडस्थ वक्रासन. अब बैठ के पेट के बल लेट जाएंगे. lie on your abdomen. सुलभ मकरासन में लेट जाए. रिलैक्स. सुलभ मकरासन में लेटने के बाद हमें सुनना है कि ये आसन जो है इसका नाम क्या है. अधोमुख वक्रासन. ओके. सो वी विल डू वन राउंड ऑफ अधोमुख वक्रासन एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. सो ये पेट के बल लेट की वक्रासन करने जा रहे हैं हम. अधोमुख वक्रासन. माथा मैट पे रखिए. दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेच कीजिए. हथेलियां नीचे की ओर है. सिर को राइट साइड घुमाइए. राइट हाथ की उंगलियों को देखिए और राइट पैर को ही उठाए और लेफ्ट की ओर ले जाए. पैर को हवा में रखें. कंधों को मैट पे रखें. सीने को भी मैट पे रखें. पेट का हिस्सा ही ऊपर उठेगा और पैर सीधा रहेगा. 1 2 3 4 5. Center. Now turn the head to the left side. Look at the left hand fingers. Raise the left leg up and take it to the right side. देखो पैर को नीचे नहीं रखना है. ऊपर रखो. कंधे मैट पे है. चेस्ट मैट पे है. पेट वाला हिस्सा ही ऊपर उठा है. And maintain 1 2 3 4 5. Slowly come back. Relax for a while. So अधोमुख वक्रासन. अब हमने ये प्रैक्टिस किया. पहले इसके नाम को समझ लो. अब ये बहुत से लोगों को पता है इसका नाम. अधो मतलब नीचे. ऊर्ध्व मतलब ऊपर. तो संस्कृत शब्द है अधोमुख. तो अधोमुख मतलब नीचे देखते हुए. हमारा मुख जो है वो नीचे की तरफ है. तो अधोमुख मतलब डाउनवर्ड फेसिंग. वक्रासन मतलब
ट्विस्टिंग आसन. सो डाउनवर्ड फेसिंग ट्विस्टिंग आसन, नीचे देखते हुए ट्विस्टिंग आसन यानी वक्रासन हम कर रहे हैं. तो इसका बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एब मसल्स के लिए. तो स्ट्रेचेस एंड पुल्स योर एब मसल्स नाइसली. The recti muscles and the abdominal muscles are getting nicely toned up. कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होती है. डायबिटीज वालों के लिए बेनिफिशियल है. यहाँ पे जैसे हमने वक्रासन खड़े होने वाले दंडस्थ वक्रासन में हाथों पर काम किया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है पैरों पर. सो इट हेल्पिंग टू स्ट्रेच द लेग मसल्स. sciatica nerve पेन है, कंजेशन इन द लेग्स है, उन लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद प्रैक्टिस है. सो हियर यू आर वर्किंग ऑन योर लेग मसल्स. The only difference here is you have to see that your chest is completely on the mat, your shoulder is on the mat. तो उस दौरान आप उठेंगे नहीं, अपने पेट के मसल से ही पैर को उठाने की कोशिश करें. ओके, तो ऑल द बेनिफिट्स आर सेम, ओनली यू आर वर्किंग ऑन योर लोअर बॉडी. सो दैट इज अधोमुख वक्रासन. लेट्स रिपीट वन मोर राउंड ऑफ अधोमुख वक्रासन. केवल लेट जाए, पैरों को जोड़े, हाथों को शोल्डर लेवल में स्ट्रेच कीजिए, सिर को राइट साइड घुमा के राइट हाथ की उंगलियों को देखें. Right leg up and take it to the left side. Shoulder blades on the mat, chest on the mat. Keep the legs straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly back. Turn the head to the left side. Look at the left hand fingers. Raise the left leg up and take it to the right side. कंधे मैट पे है, सीना मैट पे है. मेंटेन करें. पैर सीधा रखें ऊपर वाला. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gently down. You can feel the nice twisting on the lower back. So आपकी lower back की flexibility बढ़ती है. लंबार के लिए बहुत प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ताकि आप कपालभाति के लिए, प्राणायाम के लिए ज़्यादा देर बैठ सकें. Relax and enjoy the benefits of अधोमुख वक्रासन. एक करवट पे आपकी पीठ के बल लेट जाइए. lie on your back now and we are reaching the last आसन for today. So पीठ के बल लेट जाएंगे. Relax. So a very nice twisting आसन. बहुत से वेरिएशंस है वक्रासन के. सुपाइन पोजीशन में हम आज सिंपल वाला आसन करेंगे सुपाइन वक्रासन. ओके, सो यू फोल्ड द लेग्स और यहाँ पे देखो दोनों पैरों में अंतर रखो. अब कितना रखा मैंने, मैट के बराबर, मतलब मैंने पैरों को इतना फैला दिया. दोनों घुटनों में अंतर है, दोनों फीट में भी अंतर है और हाथों को कंधों के बराबर स्ट्रेच कर दिया. आई जस्ट मूव दिस साइड सो आई गेट इनफ स्पेस. ओके, तो अभी आप क्या करेंगे, आपने पैरों को फैला दिया है, मतलब मोड़ा है और फैला है, हाथों को ऐसे शोल्डर लेवल पर रखना. ओके, नाउ टर्न द हेड टू द राइट साइड. लुक एट द राइट हैंड फिंगर्स एंड बोथ द लेग्स डाउन, गो डाउन टू द लेफ्ट साइड. So मेरा left knee completely go down and right knee will touch the heel of the left leg or the toes जहाँ पे हो सके and maintain करें. हेड को देखो राइट साइड घुमाना. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You're feeling a twist over here on the lumbar and entire back. Center and now, turn the head to the left side, the legs to the right side and the right leg goes completely down and the left leg touches the toes or the heel of the right leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come to the center. Gently relax for a while. Relax. That was a wonderful practice and Vakrasan, all the benefits, but added benefit in Vakrasan here is that you are getting the relaxation. So it helps to relax, calming down. तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्डनेस है, physically or mentally disturbed, do this practice of Uttan Vakrasan, called as Uttan because you are lying down, hence it is called as Uttan Vakrasan. Let's repeat it. Fold the legs, hands by the side, we will maintain. So ये बहुत अच्छा relaxation है. जब भी ज़्यादा थक जाते हो इस प्रकार का उत्तान वक्रासन करें. Those who have high BP, anxiety, repeat it regularly. Okay, so now move the legs to the left side and the head to the right side and maintain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Center and other side. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Center. Gently relax your legs. Relax करें, लेटे रहें. So I will just recap for you all the asanas we just now did. तब तक आप विश्राम कीजिएगा. So we were doing the Vakrasan series today, friends. We have done Vakrasan in all the postures. In sitting posture we did Vakrasan. In the standing we were doing Dandastha Vakrasan. Lying on the abdomen in the prone position we did Adho Mukh Vakrasan. And in the supine position we did Uttan Vakrasan. Okay friends, so now gently stretch yourself and sit in your place. एक करवट पे आके बैठ जाइए. Let's be ready for the breathing practices. So sit in a comfortable posture. Adopt a comfortable posture. Let's go for the practice of Swashenmakshu. Right hand thumb, right nostril close. Breathe out forcefully with the left nostril. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands down, clean the nose. Repeat with the other side. Left hand thumb, close the left nostril, right nostril, breathe out forcefully. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean the nose. Now the third part of Swashenmakshuddhi, breathing out with both the nostrils. So back straight, hands in Drona Mudra. Breathe out with both the nostrils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean the nose and open your eyes. थोड़ा पैरों को विश्राम स्थिति में रखें. Relax for a while. Okay friends, we move on for the next practice. The next क्रिया कपालभाति 100 strokes करेंगे सभी साथ में. तो आप सुखासन में बैठ जाए. हाथों को द्रोण मुद्रा में रखिए, चेस्ट को फिक्स रखें. Keep the chest fixed and abdomen is relaxed. You have to focus on the breathing out. जिनको कुछ डाउट लगता है प्लीज मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करें या मुझसे बात कीजिएगा. Okay, see that every time you are correcting yourself. Those who are regular practitioners also tend to make a mistake. So आप मेरे साथ correction करते जाइए. Okay, so fix the chest and see that you are only focusing on the active breathing out. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Maintain silence, maintain the no breathing phase for a while. Observe. The body starts resuming the normal breathing. Gently relax your legs और धीरे से आंखों को खोलें. Friends, now sit in Vajrasan or Sukhasan. We will do one round of Bhastrika Pranayam. Breathing in and breathing out actively and forcefully. So sit in Vajrasan, not compulsory, any asana. But the focus is on your breathing in and out, which is active. Okay? हाथों को साइड में रखें. Back straight. Let's start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6,
in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, last 15. Very good. Relax yourself. That was 15 strokes of Bhastrika Pranayam. सुखासन में बैठे एंड लेट्स गो फॉर द रिलैक्सिंग प्राणायाम. भ्रामरी एवं ओंकार, हाथों को पद्म मुद्रा में रखें. भ्रामरी प्राणायाम, भौरे की गुंजन की आवाज, सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए हमिंग दी साउंड. ब्रीद इन फुल. सीधी है. Focus between your eyebrows. We chant 3 omkars. Breathe in full. Enjoy the vibrations. स्पंदनों को महसूस करें. अब दोनों हाथों को रब करें. Nicely make them warm and massage your face. Again, rub your palms. Gently move your palms on your entire body. Feel the nice warmness and the freshness. एक बार और हाथों को रब करें. अपने चेहरे पर रखो. In the darkness, feel the warmth of your palms on your eyes, on your face. Feel fresh, feel more energetic, feel more lighter. धीरे धीरे पलकों को झपकते हुए आंखों को खोलिए. Okay friends, so we end our session over here. It was a lovely session.